السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ ملک کے سیاسی میدان میں تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن اگر عالمی افق پر ہم دیکھیں تو صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے وہ اپنا جو کہنا چاہیے کہ اپنا کیس ہے وہ نہ صرف دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، بڑے عرصے سے پاکستان کے جو ارد گرد ممالک تھے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے بین الاقوامی ہورائزن میں پاکستان کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ روابط ہوں، وہ استوار کرنے کے لیے پاکستان اس وقت بھرپور ایفرٹس کر رہا ہے، اور ایسا ہی ایک بڑا سکسیسفل پلیٹ فارم اس مرتبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی رہا ہے، جہاں پر ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نہ صرف یہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھرپور مصروفیات گزار رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ درینہ تعلقات دوبارہ استوار کیا جائیں جن میں کہیں نہ کہیں کوئی گیپ یا ڈیڈ لاک برقرار تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ لیٹ نائٹ پاکستانی ٹائم کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ سے بھی کرنی ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ اس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی شرکت کریں گے، اور اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل پچھلے کچھ عرصے میں ایک سے زائد ملاقاتیں کر چکے ہیں، اس لیے اس میٹنگ کو بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان ایک روز پہلے صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات کر چکے ہیں مسلم ممالک کے سربراہان کے اجلاس میں جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بڑے عرصے سے جو ایک کیفیت موجود تھی پاکستان اور امریکہ میں سرد مہری کی، وہ کس حد تک ختم ہوئی ہے تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ اور اس مرتبہ یہ UN کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں فلسطین کے ایشو کے اوپر بہت کھل کر بات کی گئی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا طبقہ مسلم ممالک کا اور اس کے علاوہ بھی ان کی تقریر کا علامتی بائیکاٹ کر کے چلا گیا، اس لیے یہ اس مرتبہ کا جو اجلاس ہے وہ ماضی کے اجلاسوں سے خاصا مختلف نظر آتا ہے۔ اس کی مزید کچھ انسائٹ کیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کس حد تک پاکستان اپنا مقدمہ مختلف محاذوں کے اوپر اس اسمبلی کے اجلاس میں اس کی سائیڈ لائن کی میٹنگز میں رکھ سکا ہے، اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے رخ کریں گے اس وقت امریکہ کا، جہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب، جو کہ اس پورے اجلاس کی کوریج کے لیے بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ان سے ہم کچھ اپڈیٹس بھی لیں گے۔ عامر بھائی بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے وہاں کی مصروفیت سے وقت نکالا ہے، یہ فرمائے گا کہ ویسے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ڈیفرنس ہے اس ملاقات میں جو کہ پاکستان کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے، امریکی صدر ٹرمپ کی، وزیر اعظم پاکستان اس میں جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے بڑا اس کو انکلوزڈ رکھا گیا ہے کہ اس ملاقات میں کیا ہونا ہے، لیکن کچھ خبریں آپ تک پہنچ سکی ہیں کہ آخر وزیر اعظم کس ایجنڈا کے تحت ملاقات کر رہے ہیں؟ پاکستان کا رات کا 1:30 بجے گا اور یہاں شام کے 4:30 بجے ہوں گے واشنگٹن میں، تو یہ میٹنگ شروع ہونی ہے۔ اور یہ یہاں جب میں نیو یارک پہنچا تو اس دن بھی مجھے جہاز میں اطلاع ملی کہ 25 کی میٹنگ پھر کنفرم ہو گئی ہے، تو میں نے وہاں سے بھی دی خبر یہ کہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ اس سے 2 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ جو قطر اور امریکہ ہوسٹ کر رہے ہیں اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ شہباز شریف کی جو آج میٹنگ ہونی ہے یہ باضابطہ تو پہلی میٹنگ ہے، لیکن ویسے 2 ملاقاتیں ان کی اس طرح ہوئی ہیں کہ ایک تو عرب سمٹ میں، اسلامک سمٹ میں ملے ہیں وہ، اور کہ ہینڈ شیک ہو رہا ہے، ڈال موجود ہے، پھر میٹنگ میں موجود تھے سب، 3-3 4-4 منٹ بات۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا امریکن پریزیڈنٹ ایک استقبالیہ دیتے ہیں، اس میں بھی شہباز شریف گئے تھے، وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ تو اب یہ ویسے تیسری کہہ لیں 48 گھنٹوں میں جو ان کی ہونے جا رہی ہے ملاقات، لیکن ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی بنیاد آپ دیکھ لیں کہ وہ ہماری بنیاد مرصوص ہے جو امریکہ نے مانی اور پہچانی، جس میں سیز فائر کرایا، اور بار بار صدر ٹرمپ بتاتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں جو کچھ ہو چکا ہوا تھا جو ہم بتا رہے ہیں، اور انڈیا کو ماننا پڑا سیز فائر، تو اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں ایک اور رسپیکٹ بنی کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے اوپر لگایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تو یہ بھی معترف ہوئے۔ امریکنز بھی جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اشروں سے لڑ رہے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے، لیکن پھر سیز فائر کے لیے انہیں آنا پڑا۔ تو پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب آئے امریکہ، ان کی لنچ اونین میٹنگ ہوئی اور بڑی اہم چیزیں اس میں ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے آیا بھی صحیح کہ پاکستان شاید انڈیا کو کہیں آئل ہی نہ بیچنے لگ جائے، بڑے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں، مائن اینڈ منرلز پہ ہماری ایک چھوٹا سا MOU بھی ہو چکا ہے۔ تو اب وہ باضابطہ مذاکرات کی شکل اختیار کر رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جب پوری مسلم کا امریکہ سے اعتماد اٹھا، اس کی بنیاد پہ قطر کے ساتھ مل کے انہوں نے کانفرنس رکھی، وہ اعتماد سازی کی تھی CBMs کی، جو ہم کہتے ہیں نا انڈیا کے ساتھ اس وقت ہمارے CBM مسلم ملک کے بنے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ نیتن یاہو، میں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، میں نیتن یاہو کا نام لے رہا ہوں، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے۔ جیسے مودی بچر آف گجرات ہیں، وہ نہیں مانتے کہ جتنے مرضی لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں، انہیں اپنی سیاست چاہیے، یہی نیتن یاہو کا ہے کہ جب دوحہ میں وہ امریکہ کے کہنے پہ حماس والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے کہ
मगवीब निकले और हमला होता है, और उसमें जाहिर है कि सुबकी अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी हुई, लेकिन वो खड़े तो इसराइल के साथ ही हैं। तो ये वो सारी चीजें थी जिसकी बुनियाद पे बैठना पड़ा। और कल जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि एक सीज फायर बहुत जल्द मुतवक्को है और फॉलो अप मीटिंग शुरू हो चुकी नहीं है, क्योंकि अमरीकी प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि अगर इसराइल के साथ फलस्तीन के मसले पे कुछ तय हो तो मुस्लिम ममालिक उसकी गारंटी करें। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक की गुफ्तगू ये है कि इसराइल की गारंटी कौन करेगा? आप तो कहते हैं मुझे 10 मिनट पहले बताया, और वो कह रहे हैं कि हमने 50 मिनट पहले बताया था, तो हम कहाँ जाएं? ऐसे माहौल में जो ये मीटिंग होने जा रही है, जब हम इंडिया का मामला हो चुका है, रशिया और इंडिया पे ट्रंप बरस रहे हैं कि यूक्रेन की जंग भी वही चलवा रहे हैं, और हमारा सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट हुआ है डिफेंस का, तो ये कोई अमेरिका के खिलाफ पैक्ट नहीं हुआ, दो मुल्कों का आपस में हुआ है। और उसमें जब ख्वाजा आसिफ से मैंने पूछा, उसने कहा कि इसमें दोनों मुल्कों की बाहम मशावरत से ही कोई तीसरा मुल्क या चौथा पांचवा मुल्क शामिल हो सकता है, अदरवाइज हम दो मुल्कों का है। तो सदर ट्रंप बड़े, आपको पता है, ब्लंट भी हैं बात करने में, और हम सब बड़े मुतमन्नी थे कि हम भी व्हाइट हाउस जाएंगे, प्रेस टॉक में बैठेंगे, लेकिन रात हमें बताया गया कि ये क्लोज डोर मीटिंग है, इसके बाद कोई प्रेस टॉक नहीं है। तो फिर हम भी यही न्यूयॉर्क में रुक गए, और बाकी जो जाहिर है मीटिंग 4:30 बजे फिर प्रेसिडेंसी से व्हाइट हाउस से जारी हो गया एलामिया कि ये मीटिंग है। आज अर्दोआन के साथ उनकी पहले मीटिंग है, फिर लंच है, और बाकी मीटिंग्स में फिर प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग है हमारे शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद होंगे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। कोई 1+4 की बात कर रहे हैं। ये मैंने इतना लंबा खींचा इसलिए कि एक बैकग्राउंड में ये समझ आनी चाहिए आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, कि ये कैसे माहौल में मीटिंग होने जा रही है। नहीं, ये बड़ा आपने जबरदस्त उसका पूरा जो समरी आपने पेश की, मतलब इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है या वैसी गपशप नहीं है, बल्कि इसमें पूरा पाकिस्तान की तरफ से एक पैनल है जिसमें पीएम भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, मतलब वो सब बैठेंगे और इसको बिल्कुल इनक्लोज रखा गया। इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक रिलेशनशिप बनता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है। पहले फील्ड मार्शल का विजिट था ब्रंच के ऊपर, अब हम देख रहे हैं वजीर आजम भी दूसरी तीसरी दफा मुलाकात कर रहे हैं इन दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन पहले से तो बहुत बेहतर है, हम अपना केस स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड कितना अब उजागर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया उस पोजीशन पर अब नहीं है जिस पर माजी में अमेरिका के सामने था? देखिए, कनाडा वो वाहिद मुल्क था जिसने पहली बुनियाद रखी कि यानी इंडिया दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर अमेरिका में बात आई, फिर ऑस्ट्रेलिया में आई, यूके में आई। तो अब तो सब लोग ये समझते हैं और बात कर रहे हैं ना हमसे कि ये पहलगाम का जो वाकया हुआ, तो इंडिया ने तो बहुत जोर लगाया था कि उस पे डिप्लोमेटिक कोर जो है, जो 200 के करीब वहां मुल्क बैठे, उन्होंने नहीं मानी बात की। ये सारी पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, आप बताएं सबूत क्या है? सबूत नहीं दे सके। फिर ये जंग हुई तो दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है दहशतगर्दी का, जो कि की तरफ से हो रही है, इंडिया की तरफ से हो रही है। तो अब बातें और तरह से हो रही हैं कि जी बैठ के बात करें, सिस्टम को ठीक करें, दोनों ममालिक आपस में करें। हमने जो लड़ाई झगड़े की कहानी थी वो तो हमने खत्म कर दी कि आप कर लें, जब आपका दिल करे आप हमला कर लें, हम आपको जवाब दे लेंगे। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे उस सिचुएशन में मौजूद है जहां पूरी मुस्लिम दुनिया भी हमारी तरफ दोबारा से देखने लग गई है कि कोई ऐसा काम नहीं है। हमारी क़यादत भी बेहतरीन अंदाज में मिल के, यानी हमारी फौजी क़यादत है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, खुद दोनों तरफ से यही बात होती है कि हम मिल के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये मीटिंग होने जा रही है तो ये बड़ी ठीक ठाक क्रूशल मीटिंग है। ये नहीं है कि वहां बैठ के कोई इनाम और नवाज़शात मिलनी है। सदर ट्रंप बड़ी खुल्लम खुल्ला हैं, उनके अपने मुतालबात होंगे कि पाकिस्तान दो तरफा तौर पे कैसे चल सकता है। आप चाइना को मत भूलें कि वो टाइम टेस्टेड हमारा दोस्त है, और अमेरिका की उनके साथ बड़ी सदमौरी भी है, ओपन जंग भी होती है। वो कहते हैं बगराम लेंगे और 1 घंटे के फासले पे उनके एटमी हथियार तैयार हो रहे हैं, हम हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो नहीं पार्टी बनना ना उसमें, और पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू भी होगी, वो प्रेशर भी डालेंगे अपने ताउन के लिए। लेकिन यही हमारी डिप्लोमेसी का तकाजा है कि हम सबको साथ लेके चले, और पाकिस्तान इसी लिहाज से चलेगा कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे, लेकिन हम किसी के एक की वजह से दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ना छेड़ेंगे। ये हमारा असूल है। हम बात करेंगे कि जी हम पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, आप बताएं आपकी हमारे से क्या चीजें तवक्को करते हैं। जैसे माइनर मिनरल्स पे बात हो गई है कि आप आए इन्वेस्ट करें हमारे साथ, बात करें हमारे साथ, और जहां हमारे मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन भी कहा, और वो कल फिर कौमी यहाँ जनरल असेंबली में भी तकरीर में बताएंगे कि आप दहशतगर्दी पे इंडिया बात करना चाहता करे, कश्मीर पे बात सबसे पहले बात होगी, तिजारत पे बात होगी, लेकिन बात असूल के तहत होगी। इस तरह नहीं होगी कि आप सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक बात करेंगे और हम सुन। बिल्कुल सही। यानी इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो सदर ट्रंप जो इस वक्त जहां मोदी को मुबारकबाद देते हैं, वहां प्रेशर
सही। अच्छा आमिर भाई, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये कि इसमें आप क्या समझते हैं कि आज जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक कुर्बत हुई है या फासले कम हुए हैं, उसमें आपके ख्याल में मिलिट्री डिप्लोमेसी ने कितना किरदार अदा किया? क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी से ज़्यादा हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी काम कर गई है, सऊदी अरब के हवाले से भी और अमेरिका के हवाले से भी। दूसरा, ये जो इस मरतबा UN में इतनी ज़्यादा बात हो रही है फ़लस्तीन के बारे में, आप ये नहीं समझते कि क्या इस कॉज में एक नई जान पड़ी है और आगे चलकर इसके लिए कुछ हो भी सकता है? मतलब इसराइल को अंडर प्रेशर भी लाया जा सकता है? ये 2 हवालों से अगर आपके मुझे मौक़िफ़ चाहिए। देखें, मोदी और नेतन्याहू दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ने जंग शुरू की तो हमने उनकी तबीयत साफ की, दुनिया को हमारी एबिलिटीज का पता चल गया। नेतन्याहू ने दोहा पे हमला किया, हमारा सऊदी अरब के साथ एक कार्ड हो गया। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान अपने मामला में लेते हुए, देखें ना, ईरान और सऊदी अरब की कितनी लड़ाई थी, हम उसमें एक बेहतरीन किरदार के मिल रहे, हमने उनकी भी सुलह कराई। ईरान हमारे इस डिफेंस पैक्ट पे ओपनली बात कर रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ तो लड़ाई झगड़ा लोगों ने कराने की कोशिश की। अच्छा, जो आपका बुनियादी सवाल था कि ये मिलिट्री भारत का, आपके ख्याल में ये 2 अलग चीजें हैं? क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी पाकिस्तान से बाहर की है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है, और उसके साथ हुकूमत है जिन्होंने मिलकर ये जंग जीती। एक नया तासुर बना हमारा, और हम एक मजबूत आवाज के साथ आए हैं कि हम, अगर हमें कहीं, ठीक है हम माशी तौर पे कमजोर हैं, लेकिन दिफाई तौर पे हमने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को चारों छाने चित किया है। तो इसमें हमारे अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है ना, हमें इस किस्म की तरफ जाना चाहिए। दोनों ठीक चल रही हैं, मिलिट्री भी डिप्लोमेसी भी चल रही है, और मिलिट्री डिप्लोमेसी आज से नहीं चल रही, लेकिन कामयाबी की बात यह है कि हमने जंग जीती है तो उसका तासुर दूसरा हो गया है। तो उसके अंदर फील्ड मार्शल की पहली मुलाकात पे हमारे जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो खामखा के शैतान है, उनको ये था, ये तो फील्ड मार्शल कर रहे हैं जी, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर को कुछ है। प्रेस रिलीज जाते हैं जंग के बाद कि हमें हुकूमत ने किया, ब्रसल्स में जाते हैं, वो कहते हैं अगर ये ऐसा वज़ीर आज़म ना होता तो शायद हम इस तरह जंग में जवाब भी ना दे सकते। तो एक वज़ीर आज़म वो भी था ना जो कहता था कि जंग करूंगा तो क्या मैं जंग इंडिया पे हमला कर दूं। उस वक्त आर्मी चीफ कहते थे हमारे पास तो टैंक में तेल ही नहीं है। जो उन्हीं के पैरोकार उमर अयूब साहब कह रहे थे कि इन्होंने तो यूक्रेन में गोले दे दिए। उन्हीं के पैरोकार वो फरमा रही थी अलीमा खान साहिबा वहां पे खड़े होकर कि जनाब इन्होंने तो सौदा किया हुआ मोदी से। तो जवाब मिला ना तकड़ा। तो ये हम एक हैं, इसमें हमें 2 तासुर नहीं बनाने चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन अमेरिका से जो अपडेट वो दे रहे हैं बज़ाहिर बहुत हद तक समझने में मदद मिल रही है कि आज की ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट करार दी जा सकती है, और चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या फिर फॉरेन डिप्लोमेसी हो, लेकिन इसका हर सूरत में फ़ायदा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं उनको पहुँचेगा और यकीनन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद भी बात करेंगे। यकीनन फ़लस्तीन का जो इशू है वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़कर सामने आया है, माजी में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और यकीनन अभी रिसेंटली अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो मुस्लिम ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस एक तलब की, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी की, लेकिन अब उसमें क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं ये मुलाकातें और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का इशू, इसका ज़रा इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे इस सेगमेंट में आगे चलकर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एडिटर अल अरबिया पाकिस्तान मंसूर जाफ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो पूरा एक फेज़ हमने देखा UN के जनरल असेंबली का इजलास था, लेकिन उसकी साइड लाइन पे पहले शुरू में हमने देखा है कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस और सऊदी अरब के ताउन से, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी मिले मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से। आप क्या समझते हैं कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इतना किसी इशू के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड भी प्रोएक्टिव हुई हो और इस तरीके से उसको शोकेस किया गया हो? देखिए जी, मसला फ़लस्तीन के हवाले से ये जुलाई में कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि ईरान पर अटैक हो गया था तो ये सारा मामला सबोताज हो गया था। फिर उसके बाद इसको सितंबर में प्लान किया गया और ज़ाहिर शेड्यूल के मुताबिक इसको स्टेज किया गया। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक नेगेटिव पहलू देखने को मिला कि वो खुद जो फ़लस्तीनी सदर हैं उनकी वहाँ पे गैर मौजूदगी, उन्होंने अगरचे एक वर्चुअल ख़िताब किया लेकिन उससे उसकी अहमियत जो है वो थोड़ी सी ज़ायल हो जाती है। इस लिहाज से भी कि आप जिस बंदे या जिस कदिये के बारे में एक पूरा मेला सजा रहे हैं उसमें उसे ही इनवाइट नहीं कर रहे हैं, और उससे फिर ख़ासतौर पे अमेरिका और इसराइल की एक गठजोड़ और हटदर्मी भी ज़ाहिर होती है कि उन्होंने बेसिकली इस पूरे मामले को जो है वो ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। माजी में आपको याद होगा कि यासर अरफात साहब को भी एक बार इसी तरीके से रोका गया था, लेकिन उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इमरजेंसी अरेंजमेंट में जिनेवा में इजलास बुलवा के उनसे खिताब करवाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। लेकिन आपने जैसे कहा कि इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेज कर रही है, और
اس میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے. جی اچھا منصور بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے ملاقات کی مسلم ممالک کے سربراہان سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے ان سے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور اس کے فوری بعد وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے بھی ملے، یہ کیا مطلب کوئی میسیجنگ تھی جو ایک جگہ سے کنوے ہوئی دوسری جگہ؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم ممالک نے غزہ اور فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ان سے کوئی کانکریٹ بات نہیں کی ہوگی؟ کیونکہ جو خطاب تھا ٹرمپ صاحب کا اس میں وہ بڑا امن کے دائی بنے ہوئے تھے، لیکن اب جس طرح فرانسیسی صدر نے ان کو کہا کہ جی اگر آپ نے امن کا نوبیل انعام لینا ہے تو آپ غزہ کا مسئلہ تو حل کروائیں، تو اس کے اختتام پر ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خطاب ہے وہ تو یقیناً ان کا پرومپٹر خراب ہونے سے ان کا سارا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا اور انہوں نے وہ ایکسٹمپور خطاب کیا جس طریقے سے وہ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہاں پہ جو ان کی سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوئی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ، بہت ہی گنے چنے لوگ تھے، اس میں پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا غیر عرب ممالک تھے، باقی سارے تقریباً عرب تھے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھی کوشش تھی، اور اس میں ان کی وہ بات کہ جو شاید وہ پوڈیم پر نہ کہہ پائے ہوں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی ہوگی. اور اس کے بعد ان کا نیتن یاہو کے ساتھ الگ سے ملاقات کرنا، یہ میسیجنگ تو میں سمجھتا ہوں جو اقوام متحدہ کو پلیٹ فارم پہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر تھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ پوڈیم پر خطاب کے لیے جو ان کے اسرائیلی وزیر اعظم آئے ہیں تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پورا ہال جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. بالکل تو یہ پوری دنیا کا احتجاج تھا، اور یہ وہی رویہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے، اور اسی کے نتیجے میں شاید جو اس وقت جنگ بندی کا جو ایک قضیہ ہے وہ بھی شاید ایکسپیڈائٹ ہو، ادروائز تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس موڈ میں دکھائی نہیں دیتے. اچھا آخری سوال بس منصور بھائی آپ سے کہ آپ کے خیال میں چلیں اب بہت سے ایسے ویسٹرن کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جنہوں نے فلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کیا ہے، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی اسٹیج پہ جا کے فلسطین کے لیے ممکن ہو سکے گا اسرائیل کے چنگل سے نکلنا؟ کیونکہ اب وہ لوگ جو اسرائیل کے بھی اتحادی تھے وہ بھی ان سے خائف ہیں. دوسرا پاکستان کا کردار آپ اس پورے سینیریو میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی آخری روز خطاب ہے، ان کو کن چیزوں کو خاص طور پر اپنی گفتگو میں زیر بحث لانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، وہ تو یقیناً اس بارے میں خود سربراہ مملکت ہیں، بہتر سمجھتے ہیں وہ کیا بات کریں گے، اور پاکستان کا موقف ایک مسلمہ موقف ہے، میں سمجھتا ہوں اسی کو وہ ری ایٹریٹ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنے جو ذکر کیا ہے کہ اس پورے یعنی جو مسئلے کے حل کے حوالے سے، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ اس پر پیش رفت ہوگی، اور خاص طور پہ یعنی جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. اور پاکستان یقیناً ایک خطے کا اہم ملک ہے، اور خاص طور پہ اس قضیے کے حوالے سے بہت ہی سینٹیمنٹل بھی ہے اور اس کے بڑے جذباتی وابستگی بھی ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہو، چیف آف آرمی جو ہمارے فوج کے سربراہ ہیں ان کے ہمراہ، یا اس کے الگ سے، تو وہ اس موقف کو، اس نقطہ نظر کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کریں گے. اور یہی میں سمجھتا ہوں اس پورے قضیے کا محاصل ہے، اور اس کے بعد یقیناً فلسطینیوں کے دل در جو ہے وہ دور ہونے کی ایک امید پیدا ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ منصور جعفر، آپ کا ناسازی طبیعت کے باوجود بھی ہمارے شو میں شامل ہوئے ہیں، ایڈیٹر العربیہ پاکستان. یقیناً اگر دیکھا جائے تو غزہ کے لحاظ سے اس مرتبہ اقوام متحدہ کا یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ رہا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے شاذ و نادر ہی دیکھا ہے کہ اتنی کھل کر بات کی گئی ہو. کئی ممالک نے غزہ کی سپورٹ میں علامتی طور پر صحیح، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کیا، اور تقریباً پورا ہی ہال ہمیں اس دوران خالی نظر آیا. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس ایشو کے حوالے سے کیا حل نکلتا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا رخ کریں گے، جہاں پر 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایسی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے کہ بظاہر خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. سیاسی ماحول کیسا ہے وہاں پر، اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب تھوڑا سا کچھ سیاسی میدان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 ستمبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بڑی بھرپور تیاری کر رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پر اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ یہ ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہونا چاہیے. اب انٹرسٹنگلی اس میں جنید اکبر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، ان سے زیادہ ذمہ داری سی ایم خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صاحب کے اوپر عائد کر دی گئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ
जरीमा खान साहबा के हमरा वो अडियाला के बाहर गुफ्तगू भी कर रहे थे और उसमें बड़ा खुलकर जो तवक्कात थी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके बरक्स वो बात ये भी कर रही थी कि खान साहब की रिहाई के जहाँ मुमकिनात नज़र आने लगते हैं वहीं उनकी दोबारा कैद की जो राह है वो हमवार कर दी जाती है। यानी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी ज़मानत की बात हुई है, लेकिन उससे पहले तोशाखाना 2 में ये PTI एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको सज़ा हो सकती है। दूसरी तरफ ख़ुद इसमें इस पूरी सिचुएशन में खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म एक ऐसा मसला है जो कि अभी तक हल नहीं हो पा रहा है और उसमें यकीनन बड़ी क्लियर डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज़ हैं जो कि एक सूबाई हुकूमत की है और वफाक की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी होने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज़ुबानी बयानात हैं उनकी एक जंग इस वक्त नज़र आ रही है हमें सूबा सिंध और पंजाब के बीच में सैलाब के नाम के ऊपर। इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले तो फरमाइएगा सर कि इस वक्त बड़ी हम सियासी तौर पर गहमा गहमी देख रहे हैं। 27 सितंबर को PTI की बड़ी कोशिश है कि लाखों का एक मजमा पेशावर में जमा किया जाए। आप खुद भी वहाँ पर बैठ के मतलब गवर्नर हाउस में सियासी तौर पर जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं वो आपकी नज़र से तो ऐसा नहीं होता कि ओझल हो रही हों। लगता है आपको कि जो बानी चेयरमैन के अहकामात हैं कि लाखों का समंदर होना चाहिए और गंडापुर साहब को जो स्पेसिफिकली टास्क दिया गया है वो उसको अचीव कर सकेंगे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PTI 27 तारीख को पेशावर में जलसा करने जा रही है और होम प्रोविंस भी है जहाँ पर हुकूमत है और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो गाड़ियाँ जो है वो किराए पे ले लेकर जो है वो PTI वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है वो जो भी खाना शाना जो भी है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग पेशावर जाएँ। सिर्फ सवाल ये है कि इस वक्त जल्द करने की जरूरत क्या है। इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ में चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करें। खैबर में भी जो सैलाब की सिचुएशन है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बनिस्बत जल्द से भी जल्द से भी कर लिया, एहतजाज भी कर लिया, चौक चौराहों पे भी निकला है, सब कुछ कर लिया, तो क्या इससे इनका बानी चेयरमैन बाहर आ जाएगा? क्या चौराहों पे और चौकों पे और जलसों में उनको सजा हुई है? उनको सजा हुई है अदालतों से, तो उनका काम है कि अदालतों से रजू करें, न कि जो है वो जल्द से जुलूस करें। जल्द कर लेंगे फिर उसके बाद 28 को क्या होगा? पहले तो सूबाई हुकूमत को ये अपनी जो है PTI की हुकूमत को अपनी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और पार्लियामेंट में सूबाई हमारे जो CM है उनको आना चाहिए और अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि हमारे सूबे के अमन के लिए क्या कर रहे हैं। आए वो रियासत के साथ हैं कि वो मिलिटेंट्स के साथ हैं। जब आधी PTI कहती है कि हम ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आधी जो है वो कहती है कि जी हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के फेवर में हैं। इस वक्त सूबे की जो सूरत हाल है जो मुख्तलिफ जिलों में और खासकर अपने CM के अपने जिले में सिचुएशन चल रही है वो भी सबके सामने है कि वहाँ पर दहशत गर्दी है, तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो इस वक्त हमारी फौज कर रही है। देखिए जब तक हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी सूबाई हुकूमत और स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होंगे तो चीज़ें जो है वो मुश्किल होती हैं। मतलब है कि आसानी ये होती है कि आपकी सूबाई हुकूमत भी आपके साथ और रिसीव करें। तो उनके बानी चेयरमैन ट्वीट करते हैं कि नहीं आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो जाएं, मेरा CM खड़ा हो जाए, मेरी पार्टी खड़ी हो जाए और यहाँ पर जो है अमन लाने के लिए हम क्या करेंगे, अमन किस तरीके से लाएंगे? अगर हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमने जिरगे भी भेजे, जिरगे भी कामयाब नहीं हो सके, लोग यहाँ आकर जो है उन्होंने पनाह भी ली हुई है, लोगों के साथ है भी सही, जो दहशतगर्द यहाँ पर हैं जो हमारे सूबे का अमन खराब करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे कि हम कह लेंगे बिल्कुल आप आए हमारे सूबे का खुदा न खासा अमन तबाह करें। रोजाना की बेस पे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, FC के नौजवान ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, सिविलियन उसको सरकारी मुलाजमीन को अगवा बर तवान के लिए ले जाते हैं। ये सब कुछ जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है हमारे सूबे में, तो उस पर तो कोई तवज्जो नहीं है। जलसा खेलना चाहते हैं। बानी चेयरमैन आपका अपने करतूतों की सजा भुगत की बाहर आएगा, ऐसे बाहर नहीं आता। अच्छा, अभी आपने सर जिक्र किया कि ये पॉलिटिकल गैदरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब गंडापुर साहब आज फरमा रहे थे कि जो बानी चेयरमैन के केसेस हैं वो प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और अदलिया भी आज़ाद नहीं है। दूसरी तरफ खान साहब की जो बहन है वो फरमा रही थी कि एक केस में उनकी ज़मानत होने लगती है तो दूसरे केस में उनको अंदर कर दिया जाता है। अब अलकादिर के हवाले से उनकी ज़मानत अक्टूबर की डेट आई है तो वो कह रही है उससे पहले तोशाखाना 2 में उनको सज़ा हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि मामला इतना सादा है और अदलिया आज़ाद नहीं है और प्लान का एक बनाया गया है उनके खिलाफ और उसके मुताबिक ही उनको लेके चला जा रहा है? ये कौन कहते हैं अदलिया आज़ाद नहीं है? आप मुझे बताएं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे फॉर डिस्कशन से कह दूं यार PTI का शख्स पेशावर में आके जमा क्यों कराता है? फिर जो पंजाब का उठता है, जो सिंध का उठता है, जो बलूचिस्तान का उठता है, आके पेशावर में आके कल बोलेंगे यार पेशावर की अदालत आज़ाद नहीं है।
जहाँ से इनको जो है रिलीफ मिलता कहते हैं वो आज़ाद हैं, जहाँ से रिलीफ नहीं मिलता कहते हैं जो वो नहीं आज़ाद नहीं। तो केपी में आके सारे लोग जो अपने रिलीफ लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आज जो है अदालतें आज़ाद नहीं? हम तो कहते हैं यहाँ पे अदालतें आज़ाद हैं, पूरे पाकिस्तान में आज़ाद हैं। हम जब दूसरे में थे तो इनके बानी चेयरमैन ही कहते हैं अदालतों से रिजू करें, अदालतों ने सजा दी है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है अदालतों, अगर आप कहें कि जी अलकादर ट्रस्ट है या तोशा खाना है या ABC जो भी केस हैं उनके ऊपर, तो उसमें वो मुलविस हैं जो उनके ऊपर उनको ट्रायल्स हो रहे हैं। अगर वो मुलविस ना होते ट्रायल्स कैसे होते? तो चीज़ों पे हैं, आप ट्रायल हैं, आप अपने वकला को बोलें कि आपका केस सही प्लीड करें और आपकी जमानतें होंगी। अगर आप सही केस प्लीड नहीं करेंगे तो और आपके वकील भी सियासत करेंगे और एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे। इनको तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, पॉलिटिकल दुश्मनों के, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी है। एक ग्रुप एक कहता है, दूसरा ग्रुप दूसरा कहता है, तीसरा कहता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, अगर आप क्या कहते हैं चलो जलसा हो भी जाता है तो उससे क्या आज़ादी मिलेगी? पहले कितने जलसे किए हैं, पहले कितने तजाज की इस्लामाबाद पे हम चढ़ाई कर रहे हैं, कभी कफन बांध के कहते थे हमारे जनाजे पीछे पढ़ लेना, अगले दिन पता चलता था कि खुद जो है ना वापस पहुंच गए, जनाजे वालों को जो उधर पीछे छोड़ा है, फिर 13 जिले क्रॉस करके वापस आ जाते हैं, कभी कफन पोष जाते हैं, कभी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, कभी कहते हैं हम जिहाद करने जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे जब तक हम जो है बानी चेयरमैन को जेल से निकाल कर नहीं आएंगे। तो हर जलसे के बाद, हर चढ़ाई के बाद तो अगले विदिन 24 आवर वापस पहुंच जाते थे। तो बात ये है इनकी सिर्फ बातों तक। माजरत आपकी बात काट रही हूँ कोटी साहब, लेकिन इस मरतबा ये तो गंडापुर साहब को तो सीन से बिल्कुल माइनस कर दिया गया था। खान साहब इनके बड़े खिलाफ थे, आपके ख्याल में वापस इनके ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली है? जुनेद अकबर साहब डिलीवर नहीं कर सके, या आपको लगता है कि इस मरतबा स्टेट का यानी सूबे का पैसा लगा के लोगों को निकालना है बाहर? देखिए, जुनेद अकबर साहब और इनकी आपस में कोई इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, PTI का पॉलिटिक्स कोई पता नहीं है। अब माजी में आप देखें ना कि इस्लामाबाद चैप्टर PTI का मौलाना फजल रहमान के पाँव पड़ता था, KP चैप्टर जो है मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहता था, उधर जाके उनके पाँव पड़े थे, आप हमारे सियासी मसीह हैं, हमें यहाँ से हमारी जान छुड़वाएं, हमें रिलीफ दिलवाएं, आप ही आगे हैं। वो KP वाले कहते नहीं कि हमें उनके ऊपर जो है CM किसी भी स्टेटमेंट दे रहा होता था। लिहाजा इनका अपना कोई पता नहीं है कि इनका हर घंटे बाद इनका जो है जो भी नया जो है उनका वली वारिस बन जाता है। आज इसको मैंने मैंडेट दिया, आज हमने इसको दे दिया, आज इसको दे दिया। तो अगर आपने जलसा कर दें, इनको पता है कि हमारे लिए लोग निकलने नहीं है, ना हमारे लिए लोग बाहर आने हैं, तो हमने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना है, हमने अपने जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना है, हमने पटवारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करना है, हमने TMS को इस्तेमाल करना है, गाड़ियाँ निकालनी है, लोगों को पैसे देने हैं, किराए पे लोगों को लाना है। तो ये तो PTI नहीं कर सकती, ये तो सरकारी वसाइल के जरिए हो सकता है। उसी वजह से उन्होंने इनको कहा कि CM को कि आप जाके जलसा करें, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी जगहों पे तो जलसा कर नहीं सकते हैं। अब ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उन्हें जलसा करना है, उसके लिए वो आ रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने टेररिज्म का हवाला दिया, ये फरमाएगा कि आखिर वजह क्या है कि एक तो इनको पता भी है कि टेररिज्म का जो इंसिडेंट्स हैं वो KP में इस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, खुद सूबाई हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन जब भी बात होती है कि स्टेट ऑपरेशंस करने लगती है तो उसके बाद ये इस मसले को ज़्यादा उछालते हैं कि ये इसका हल नहीं है। खान साहब भी इस बारे में ट्वीट्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू भी पार्टी के लीडरान यही कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में आखिर वजह क्या है कि ये बार बार मुज़ाकरात की, बल्कि भी कुछ दिनों पहले ये तक कहा उन्होंने कि जी अफगानिस्तान हम जिरगा भेजने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत नहीं भेजना चाहती। मतलब ये अभी तक क्लैरिटी क्यों नहीं आ सकी कि जो स्टेट की पॉलिसी है वही सूबे को भी ओन करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये इन मिलिटेंट्स को इन्होंने आवाज कहते हैं यहाँ पे कहते हैं नहीं उठाएंगे, हम इनको वापस लेकर आए, आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। फिर ये कहते हैं हमने जिरगा करना है अफगानिस्तान के साथ। पहली बात है कि पहले भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर जो 3-4 दफा अफगानिस्तान गए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी गए हैं, और इसीलिए गए हैं कि उन्होंने ये उनको बावर करना है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सुबह कभी किसी रियासत से बात नहीं करता, कल वो डिमांड रखते हैं कि जी हमारे वफाक से ये वो है, तो क्या इनके पास इख्तियार होगा? अब CM साहब को तो अभी हमें पता चला कि पास अपना पासपोर्ट भी नहीं, मेरा पासपोर्ट भी जब्त हुआ पड़ा है, तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। और फिर देखिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देखें कि मुझे अपना पार्टी का चेयरमैन बोलेगा तो मैं अफगानिस्तान ही पहुंच जाऊंगा, बगैर पासपोर्ट के कैसे अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे? छुप छुपा कर जाएंगे या क्या करेंगे आप उसके बाद? और किस तरीके से आप अपनी नुमाइंदगी करेंगे जब आप बगैर वीजे के अफगानिस्तान जाएंगे? वो और चीज़ है। लेकिन कभी भी जो है वो रियासत से अगर किसी ने बात करनी, अगर कोई इशू है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाए, फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत करें। जब भी फॉरेन मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम या कोई जाए तो आप उनके साथ आपको लेके जाए, अच्छी बात ले जाए और वहाँ पर अपने इशूज जाकर और बात करें। लिहाजा ये चीज़ें अगर आप कहें कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट, आप कहते हैं कि अमन भी आए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना हो, उसका हल तो हमें बता दें ना। आप कहते हैं कि डायलॉग्स हमने कर लिए, मज़ाकरात कर लिए, वो हमारे इलाका नहीं छोड़ना चाहते, अब मुझे बताएं कि हम अपने लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, अमन अमान कैसे बहाल कर सकते हैं। जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे FC के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं,
तो हम किस तरह उसको रोकें? ये हमें ये फार्मूला तो बता देना। आप पूछ रहे हैं इनसे कि फार्मूला बता दे कैसे ये चीज़ रुक सकती है। जब वो आपके डायलॉग्स भी नहीं मानते, आपका जरिया भी नहीं मानते, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कैसे नहीं करेंगे अपने सूबे में अमन लाने के लिए? बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कोंडी साहब कि बिलावल भुट्टो साहब से हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ उनकी बैक एंड पे सोच होती है जिसके तहत वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। अभी उन्होंने ये जो पंजाब और सिंध के बीच में सैलाब के नाम के ऊपर बिला वजह बहस हो रही है, रिसोर्सेज के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, अब बिलावल भुट्टो साहब को भी ये कहना पड़ा है कि जो BISP है उसके ज़रिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, और लाखों की तादाद में नंबर BISP के पास डेटा भी मौजूद है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उसको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय बेनज़ीर रोजगार स्कीम बनाया जाए। यानी ये बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों की जा रही है, और ये लफ्जी बयानबाजी दोनों सूबों को क्या सूट करती है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ये ऐसे उन्होंने इसको इशू बना लिया है हमारे पंजाब के दोस्तों ने। देखिए, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका डेटा लाखों में नहीं करोड़ों में है। इस वक्त 1 करोड़ तकरीबन बेनिफिशियरी है हमारा। उसके बाद डेटा बहुत से लोगों का मौजूद है। अब देखें कि जिसका स्कोर 32 है उससे नीचे उसको बेनिफिशियरी कार्ड मिलता है, जिसका स्कोर ज्यादा है उसको कार्ड नहीं मिलता। अब बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक डेटा पूरे पाकिस्तान का मौजूद है कि जिनके स्कोर 32 है, 35 है, 40 है, 60 है। पिछली हमारी हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो रमजान के महीने में उन्होंने आटा तकसीम करा। तो उन्होंने कहा कि स्कोर जिसका 40 है हम उसको जो है आटा तकसीम करेंगे। तो उस वक्त जब हमने अपने कंप्यूटराइज सेक्शन से हमने निकाले कि जिसका स्कोर 40 है, हमने चारों सूबों को अपने डेटा बता दिया कि आपके इतने इतने बेनिफिशरीज हैं 40 स्कोर के, और इस जिले में इतने हैं, इस तहसील में इतने हैं। तो वो टोटली जो है बड़ा आसानी से सिंध ने तो तकरीबन जो है वो तकसीम किया थ्रू कैश ट्रांसफर। उन्हें अपने मोबाइल के जरिए कैश ट्रांसफर के लिए या अपने बेनिफिशियरी को पकड़ लिया। पंजाब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जो है वो थैले ट्रक लाएंगे और तकसीम करेंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से आप रोजाना टीवी बताते थे कि यहाँ पर खातून बेहोश हो गई है, यहाँ पर लाठी चार्ज हो गया है, यहाँ पर जो है वो कपड़े फाड़ दिए, रमजान के महीने में ये ज्यादती हो रही है, धूप में लोग खड़े हैं, और अगर आसानी से मोबाइल पे ट्रांसफर या जो उनके जो है मशीन के जरिए ट्रांसफर होते हैं वो ज्यादा तो आराम से लोग ले लेते हैं। अभी भी इस रमजान में वही चीज उन्होंने अडॉप्ट की है, और इस रमजान में इसी हुकूमत ने जब दोबारा किया तो BISP के जरिए किया, मोबाइल ट्रांसफर के जरिए किया। इसको ये पता ही नहीं है कि कितने पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, मतलब जो वो चीज नहीं हुई, जिस मतलब है कि इस चीज का पता नहीं था, मतलब है कि हंगामा नहीं मचा, चीजें बड़ी आसानी से हुआ। फिर पिछली हुकूमत में आप देखें, आपने पेट्रोल पे सब्सिडी दी, पेट्रोलियम पे 2000 रुपए थे या 2500 थे, मैं क्योंकि मैं स्पेशल असिस्टेंट उसी महकमे का, तो 2500 रुपए जो है बेनिफिशरीज को थ्रू कैश ट्रांसफर हो चुके थे। तो BISP के पास इस मुल्क का इस वक्त डेटा पड़ा है। अब देखें, आप पंजाब में जो है आप जब जाएंगे, अब जिस सूबे में आप जाएंगे, पंजाब में आप जाएंगे, आपका पटवारी जाएगा, बोलेंगे असेसमेंट करो। आपको पता है पंजाब में कैसे पॉलिटिक्स होती है, पटवारी और थानेदार की पॉलिटिक्स होती है। आपके वो जिसके पास जाएंगे वो चौधरी या मलिक बोलेगा या उसका नाजिम बोलेगा, MPA बोलेगा, इस माले में नहीं जाना, इस गाँव में नहीं जाना, हमारे मुखालिफ हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि इक्वली ट्रीट होगा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, JUI हो, ANP हो, जो भी हैं वो अक्रॉस दी बोर्ड 1 करोड़ बेनिफिशियरी है, हर जमात का है, उसके जेब में बेनज़ीर कार्ड मौजूद है और उससे बेनिफिट, उसमें ये नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले लेंगे। आज देखें, जो पिछले 2022 में जो फ्लड आया था, मैं अपने डी खान की बात करता हूँ, आज भी लोगों की जो सर्वे हुई पड़ी है उनको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वहां पर भी ये था कि पटवारी ने मेरा नाम नहीं लिखा, ये लिख लिया है, पोलिटिसाइज हुई चीजें। आज तक जिनके लोग घर गए थे, आज तक उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हम कहते हैं कि ये जो सर्वे है ये क्रॉस द बोर्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो उसी से आप फायदा उठाएं। आपके पास डेटा मौजूद है, आप BISP में पैसे ट्रांसफर करेंगे, ये पैसे आप जाकर आगे बेनिफिट्स को पहुंचा दें तो पहुंचा देंगे। तो ये मंतक जो है पंजाब के दोस्तों को समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या समझते इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, यकीनन कोई ना कोई अल्टीमेट सोल्यूशन होना चाहिए। सूबों के दरमियान सैलाब के नाम के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, बयानबाजी हो रही है, वो किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। एक मुख्तसर वक्फा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि किसी हद तक इस वक्त बलूचिस्तान का जो मसला है उसमें ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौजी ऑपरेशन के बजाय उसका सियासी हल तलाश किया जाए। लेकिन बड़ा ये भी ज़रूरी है कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके स्टेक्स मौजूद हैं, वो भी किसी हद तक इन तमाम चीज़ों के लिए एक टेबल पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। और इसी चीज़ की कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं कि CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब भी ये फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत जो हैं उनके ऊपर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं बलूचिस्तान से रिलेटेड, वो बड़ी हद तक अब साबित भी हो चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया किस हद तक
اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، بھارت کی طرف سے تو باقاعدہ ٹیرر فائننسنگ بھی کی جا رہی ہے، لیکن کس حد تک اس کو روکنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان اس کے لیے اپنا کیس کس حد تک مختلف جگہوں پر مضبوط کر سکتا ہے؟ اب یقیناً پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے جو ماضی میں تھی، اور بھارت کا اصل چہرہ بھی بڑی حد تک دنیا کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر کچھ مزید بات کریں گے پاکستان کے پرسپیکٹو میں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب۔ ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بہت سی چیزیں جس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے، پہلے تو فرمائیے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اس سے پہلے بلاول صاحب بھی بات کر چکے ہیں، لیکن دونوں جو سٹانس ہیں قدرے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ بیسکلی مسئلہ جو ہے وہ فوجی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس میں کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے انٹرفیرنس ٹیررزم کی شکل میں کی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر، بگٹی صاحب نے اس کا بارہا اظہار بھی کیا ہے، کتنا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری رائے لینے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں میں اس بات پہ بڑا کنونس ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو جگہ نہیں دیتے، جیسے پانی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو پولیٹکس میں آپ کو جگہ بنانی پڑتی ہے، آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ متفق ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو انگیج کر لینا چاہیے، کسی بھارت کو انگیج کر لینا چاہیے، تو پاکستان کے اندر رہنے والے بلوچی ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، وہ تو اپنے پاکستانی ہیں، ہمیں ان کو انگیج ضرور کرنا چاہیے۔ اب جب آپ انگیج کرتے ہیں تو دیکھیں جو سیاسی رائے ہے اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، ان کے ضرور کچھ ہارٹ برنز ہوں گے، یہ ہم سارے مشاہدے 1971 میں کر چکے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر ہمیں ابھی بھی سبق نہیں مل رہا تو ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں اس رائے کا بہت احترام کرتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ضرور ہے، اس کو لوگوں نے ہوا دے دی بیکاز اس مسئلے کو آپ نے راستہ نہیں دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان مکمل طور پہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، گمراہ ناصر کو وہ پیسے دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن جب آپ ان کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور ملٹری آپشن تو آلویز اٹ از اویلیبل وتھ یو، بٹ فرسٹ آئی تھنک میری اپنی ذاتی رائے میں یہ بہت احترام کے ساتھ ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ان کے کنسرنز ہی ہوں گے نا سر، کیا ہوگا، زیادہ زیادہ گیس کی رائلٹی دے دیں، ہمیں منرلز میں سے حصہ دے دیں۔ آپ اپنے سسٹم کو بہتر کرتے ہوئے ان کو قومی دھارے میں لے کے آئیں اور ان کو انگیج کریں۔ اچھا، لیکن ارشد ملک صاحب، اب جس طرح افغانستان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا تھا ٹیررزم کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان بھی، تو بڑی حد تک اس وقت بھی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان اس کا بارہا ذکر بھی کر چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اب اس کے لیے پاکستان عسکری آپشنز اپنا سکتا ہے، سفارتی آپشنز اپنا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر لحاظ سے افغانستان کے شہریوں کو واپس بھیجنے کی بھی ہم نے ڈیڈ لائنز رکھی، اس کے اوپر بھی ہمیں پاکستان کے اندر سے بڑا ریزسٹنس آیا، لیکن الٹیمیٹ سلوشن آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے جس کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں ان کو آپ کی تھوڑی سی لیوریج دینی پڑے گی، اور افغانستان بدقسمتی ہماری کہ ہم نے ان کا بہت احترام کیا، ہم نے ان کے ساتھ بہت لیوریج ان کو دی، کچھ ہم سے زیادتیاں بھی ہوئیں جس کا ہمیں برملا اظہار کرنا چاہیے۔ جب امریکہ ادھر رشیا کے جانے کے بعد امریکنز اور طالبان کو انہوں نے دشمن قرار دے دیا، اس وقت کچھ غلطیاں ہم سے یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ ہم آنکھیں بند کر کے طالبان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم نے طالبان کو بہت لیوریج دی، ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کا جو پالا پڑا ہے وہ ایسے دشمن سے پڑا ہے جو ان کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ زیادہ ایسٹس ہیں جس سے وہ ان کے ساتھ ان کو کھلاتا ہے۔ آپ کو ہر صورت افغانستان سے انگیج کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر حل سفارتی حل ہی ہوتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پوزیشن دی ہے اس میں آپ کی OIC میں دوبارہ سے ایک وقت اور قدر بڑھ گئی ہے، اس کو پہلے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ جو ملٹری آپشن ہے اس کو بالکل رول آؤٹ نہ کریں۔ ہم کسی صورت کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے معصوم شہریوں کو آ کے نشانہ بنانا شروع کر دے، یہ ایک میسج بھی جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بالکل ہر طریقے سے ضامن بلا کے چائنا کو انوالو کر کے
قطر کو انوالو کر کے، سعودی عرب کو انوالو کر کے ہمیں ان کو سفارتی حل کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ یقیناً پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سینیریو ہے، ریجن میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یقیناً ٹیررزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی ادارے بھرپور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، لیکن اس میں صوبوں کا کنسنسس اور ان کا کوآپریشن بڑا ریکوائرڈ ہوگا، ورنہ یہ آپریشنز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔